Good evening, everyone. Good Good evening, ma'am. evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good Monisha, evening, क्या ma'am. हुआ? You did Good not evening, come? ma'am. Monisha? नहीं आए? Yes, ma'am. किस लिए? सर मैम पापा नहीं है ना इसीलिए. Okay, okay, ठीक है. Okay, fine. So let's start today's class. So what we are learning now? Negotiable instruments. Okay? So negotiable instruments. Can anybody explain me what are negotiable instruments? What can be transferred? Huh? Huh? Check. Means negotiable instrument किसे बोलते हैं? An instrument which is a written document. Okay? Any instrument which is a written document and can be transferable means negotiable. That is called the negotiable instruments. So when it came into force, negotiable instrument came into force on 1st March 1882. Okay? So what are the negotiable instruments? First one is promissory note. Second one is bills of exchange. Third one is check. Oh, I forgot to bring the check. Anyway, कितना रुपया का होगा मेरे पास? ऐसा होगा क्या? दे दो मुझे तब. Okay, now another thing. Um, Promissory note is an undertaking or not? Tell me. It's a promissory undertaking. Okay? Promissory note to ki hoy? Promissory undertaking. Acha. Now, it is a order or not? No, it's not a order. Okay? Now, bills of exchange, it's a order. Yes, it's a order. Okay? ठीक है? Now, what is the difference between an order and bearer? Bearer mane jut name is not mentioned. Okay? Name is not mentioned. And order means where name is mentioned. ठीक है? Fine? Is it clear? Now next one is negotiable instrument can be transferable how many times? Negotiable instrument can be transferable how many times? Yes. N number of times. Okay? And number of times it can be negotiable. It can be transferred. But till its maturity. Till its maturity. There is no grace of days in case of promissory note. But in case of bills of exchange, there is how many days? There are 3 days, 3 grace days. Okay? Fine? Okay, promissory note, there are how many parties? 2 parties. One is maker, another is pay. Fine? Then in case of bills of exchange, there are how many parties? 3 parties, but sometimes 2 parties. Okay? But if it comes in the MCQ questions that how many parties, you have to mention only 3 parties. Don't mention 2 parties. Okay? Don't be confused. Okay?
जब P, drawer and drawee, fine. Now drawee can be the drawer is the person who gives the order to pay or who makes the bill. ठीक है? Now drawee is the person who is directed to pay. ठीक है? When the drawee accepts the bill, he is called the acceptor. और pay कौन है? The person to whom the payment is to be made. तो हमेशा क्या पे जो है यस पे जो है वो क्या हमेशा थर्ड पार्टी ही होता है? क्या होता है? यस, ओके, इज इट क्लियर? ड्रॉयर कैन बी अ पे. ठीक है, इज इट क्लियर? Now, today we are going to learn about the negotiable instrument called check. Okay, what is called check? A check is a bill of exchange. It's also a bills of exchange. Okay, check is also a kind of bills of exchange drawn upon a specified banker and payable on demand. ऐसा तो नहीं है ना कि बैंक ने बोल दिया कि आप यस आप आओ मेरे पास आओ, आपको पेमेंट करना है. ऐसा तो नहीं होता है. किसको जाना पड़ता है? जिसको पेमेंट चाहिए है ना, तो जाना पड़ेगा ना उसको. वो तो डिमांड में ही होगा. देयर इज नो ऑर्डर, देयर इज नो व्हाट, देयर इज नो ऑर्डर, देयर इज अ डिमांड. ओके, द पेमेंट विल बी ऑन डिमांड. ठीक है. A check in the electronic form means check which contains the exact mirror image of a proper check is generated, retained and signed in a secure system, ensuring the minimum safety standards with the use of digital signature and asymmetric crypto system. And it includes truncated check and check in electronic form. अब सुनो, चेक जो आप बैंक में जाते हो, जैसे मैंने एक चेक दिया. किसको? रोहित को एक चेक दिया. ठीक है, मुझे रोहित का एक टीवी का शोरूम है. ठीक है, और रोहित के टीवी का शोरूम से मैंने एक टीवी, स्मार्ट टीवी खरीदा. ठीक है, तो रोहित ने बोला कि मैम आप वो कैश दोगे या चेक में करोगे या ऑनलाइन पेमेंट करोगे? तो मैंने बोला मैं चेक में पेमेंट करूंगा. ठीक है, तो मैं तुमको क्या किया? चेक बना के दे दिया. ठीक है, और तुम जाके बैंक में डिपॉजिट किया, है ना. बैंक में जाके बोला कि देखो मुझे मेरा ये चेक है, दैट इज डिमांड. मैंने डिमांड किया कि देखो आप बैंकर को बोला कि मैं आपको ये चेक दे रही हूँ, मुझे तुम ये मनी विड्रॉ करके दे दो. ठीक है, तो अब जो चेक है उसको फर्स्ट बैंकर क्या करता है? पहले उसका स्कैनिंग करता है. स्कैनिंग करके उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाता है. ठीक है, वो अपने कंप्यूटर में वो बैंक का जो चेक मैंने दिया, वो चेक को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो प्रेजेंट करता है. ठीक है, और जो मेन चेक है उसको ऐसे काट के क्या करता है? वो ट्रंक में रख देता है. देखा तुमने? ट्रंक में जो एक बड़ा बॉक्स करके है वहां पे फेंक देता है ना. ऐसे काट के फेंक देता है. दैट इज कॉल्ड ट्रंकेटेड चेक. जो ओरिजिनल चेक होता है उसको जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाते हो, फॉर्म में लाने के बाद जब आप ट्रंक में फेंक देते हो, व्हेन यू कीप इट इन द ट्रंक, दैट इज कॉल्ड द ट्रंकेटेड चेक. ठीक है, कि चेक अभी क्या हो गया? चेक अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया, तो आपको क्या करना है? द बैंक हैज टू पे द अमाउंट. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? समझ में आया ट्रंकेटेड चेक? Now, who are the parties in case of check? Drawer, the customer who signs the check. जैसे मैंने चेक को साइन किया, so I am the ड्रॉयर जो बनाता है चेक. ठीक है, मेरा सिग्नेचर है.
ड्रॉई द बैंक ऑन होम द चेक इज ड्रॉन, जिस बैंक में मेरा चेक जाएगा, जिस बैंक से वो चेक से अपना मनी विड्रॉ करेगा, दैट बैंक विल बी कॉल्ड एज द ड्रॉई, ठीक है। एंड द पे, द पर्सन टू होम द पेमेंट इज टू बी मेड, जिसको आप पेमेंट करोगे, बैंक जिसको पेमेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड द पे। फाइन, इज इट क्लियर? Online students, is it clear till this much? Yes, ma'am. Any Yes, doubt? ma'am. ও আজ বিশালও হানায়। Okay. বিশাল না, তার নামটা কি আসলে? সারাঙ্গা। সারাঙ্গাও নাহিলে। Okay, fine. Now here you see. The check is an order in writing. Okay? It's an order in writing. Fine. An unconditional order. Condition रहना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी negotiable instrument में आपका condition रहना नहीं चाहिए, ठीक है। Must be signed by the maker, means by the drawer. Feeling very sleepy. हो जाएगा, आज को जल्दी खत्म हो जाएगा। Must be specifically mentioned in figures. Have you seen the check? Check देखा है? तो उस पे क्या होता है, एक बॉक्स, छोटा सा बॉक्स होता है ना, ये चेक है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होता है पे, पे है ना, यहाँ पे लिखा होता है पे। तो पे टू किसको किया? अगर सेल्फ हुआ तो सेल्फ होता है, अगर किसी दूसरों को देता है तो दूसरा का नाम, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका डेट होता है, जिस डेट पे ये बैंक से मनी विड्रॉ करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, आपका सिग्नेचर होता है, अकाउंट नंबर होता है ना, ठीक है, फाइन। और यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा बॉक्स होता है, द अमाउंट यू विल मेंशन, हाउ मच अमाउंट, तो ऐसा यहाँ पे रुपीज ऐसे लिखा होता है ना। और एक जगह में होता है कितना अमाउंट, 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 ये आपको वर्ड्स में लिखना पड़ता है ना, वर्ड्स में लिखना पड़ता है। 20,000 हुआ तो ऐसे 20,000 only. We write like this? Yes? So, in this way we make a check. ठीक है? May be a bearer or order check. Order check अगर होगा तो name will be mentioned or the bank account will be mentioned or name will be mentioned. ठीक है? अगर बैंक का नेम मेंशन हो सकता है, नहीं तो जो जिस आदमी को आप दे रहे हो उसका नाम मेंशन होता है, ठीक है। और बेयरर चेक क्या होगा, ये पे टू, ये यहाँ पे कुछ नहीं होगा, है ना, ठीक है, फाइन। ये पे जो होता है, पे टू कुछ भी नहीं रहता है, बेयरर चेक। जैसे मान लो मैंने रोहित तुमको एक चेक दिया, ठीक है, एंड आई हैव नॉट मेंशन द नेम। तुमने बोला मैम नहीं चाहिए मुझे ये पैसा, मुझे फिर किसी और को भी ट्रांसफर करना है, सो नो नीड टू राइट द नेम। समझ में आ गया? तो दैट विल बी अ बेयरर चेक, ओके, दैट विल बी अ बेयरर चेक, अंडरस्टूड। तो मैंने जो तुमको दिया चेक, that is the bearer check without mentioning the name, so that you can endorse, you can, तुम जो दूसरे को फिर ट्रांसफर करोगे, निगोशिएट करोगे, तुम किसी दूसरे को ट्रांसफर करोगे तो वहां पे तुम अपना नाम मेंशन कर दोगे, या नहीं तो पैसा विड्रॉ करके तुम किसी दूसरे को दे दोगे। सो द नेम हैज नॉट बीन मेंशन्ड, ओके, दैट इज कॉल्ड द बेयरर चेक, फाइन। मे बी अ सेल्फ चेक। सेल्फ चेक मैंने लिखा, बोला पे टू सेल्फ, ओके। जैसे मुझे खुद को पहले के दिन में क्या होता था, आदमी लोग एटीएम फैसिलिटी नहीं था, तो थ्रू चेक ओनली पीपल यूज टू
विड्रॉ द अमाउंट, जैसे मुझे 10,000 का अमाउंट चाहिए तो मुझे बैंक में जाके मुझे विड्रॉ करना है. सो आई वेंट टू द बैंक, मैंने एक चेक बनाया अपना और मैंने जाके अपना अकाउंट से मैंने विड्रॉ किया. ठीक है, दैट इज कॉल्ड पे टू सेल्फ. और मुझे किसी को देना है पेमेंट, सो आई मेड अ चेक इन माई ओन नेम, मतलब पे टू सेल्फ. ठीक है. द चेक मस्ट कंटेन द डेट. मैंने बोला आई हैव मेंशन दैट यू हैव टू मेंशन द डेट. पे टू बी सर्टेन, जिसको आपको पेमेंट करना है उसका नाम रहना पड़ेगा. ऐसा नहीं है रोहित और राज, ऐसा नहीं है. इफ राज हैज टू बी पेड देन पर्टिकुलरली राज का नाम. इफ रोहित हैज टू बी पेड then particularly रोहित's name should be mentioned. Is it clear? Any doubt? ठीक है. Now, what is the difference between bills of exchange and check? Bills of exchange is defined under section 5 of Negotiable Act 1881. ठीक है. Check is defined under section 6 of the Negotiable Act 1881. Fine. It can be drawn, bills of exchange can be drawn on anybody. ठीक है. Check can be drawn only on specified banker. Is it clear? बैंक से ही आप उसको पैसा निकाल सकोगे, है ना. लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो ऐसा नहीं है, कोई भी हो सकता है वो, है ना. पेबल ऑन मैच्योरिटी, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो मैच्योरिटी हो, मतलब मैच्योरिटी क्या है, मैच्योरिटी होना पड़ेगा तभी ये पेबल होगा, है ना. पेबल ऑन डिमांड, ये बिफोर मैच्योरिटी अगर आप डिमांड शो करोगे इट विल बी पेबल. ठीक है. और आपको पता है चेक का मैच्योरिटी डेट कितना है, 3 months. ओके, चेक का वैलिडिटी कितना है, 3 months. फाइन. इज इट क्लियर? और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, इन इसका क्या होता है, मेंशन रहता है ना. मैच्योरिटी डेट मेंशन रहता है, वैलिडिटी मेंशन रहता है. और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप एक्स्ट्रा 3 days ग्रेस पीरियड मिलता है ना. ठीक है. इज इट क्लियर? 3 days of grace is allowed if not paid during maturity. ठीक है. आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मैच्योरिटी हो गया लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको एक्स्ट्रा 3 days आपको मिलेगा, है ना. लेकिन इन केस ऑफ चेक देयर इज नो ग्रेस डेज. फाइन. बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्स रिवेन्यू स्टैम्प. अब देखो चेक में रिवेन्यू स्टैम्प होता है, नहीं होता है ना. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता है ना. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, रिवेन्यू स्टैम्प होता है. जैसे मैंने एक बिल बनाया, ठीक है. नहीं, मैंने सपोज रोहित मेरा एक घर है, देखो सुनो, मेरा एक घर है तो वो जैसा तैसा, मतलब इट वाज अ मतलब एक हट था. ठीक है, एक छोटा मोटा हट था. तो अभी मुझे एक पक्का हाउस बनाना है. ठीक है. नाउ मैंने रोहित को बोला कि रोहित कैन यू मेक माई हाउस. तो रोहित ने बोला हाँ मैम, मैं अपना आपका हाउस बना दूंगा. तो रोहित बोला, तो मैंने बोला कि ठीक है, तब तुम्हें कितना पेमेंट करना पड़ेगा. तो ये बोलता है कि मैं तो अभी बोल नहीं सकता हूँ आपको, मैं श्योरिटी नहीं बोल सकता हूँ. हो सकता है 15 lakhs भी हो सकता है और नहीं तो मतलब 10 lakhs 11 lakhs भी हो सकता है. तो मैंने बोला ऐसा तो नहीं हो सकता, यू हैव टू टेल मी द सर्टेन अमाउंट यू हैव टू मेंशन, सर्टेनिटी होना पड़ेगा अमाउंट का, है ना. सो रोहित बोलता है कि ठीक है, आप एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दो, उसमें आप लिख दो क्या, 12 lakhs दोनों के बीच में. ठीक है. तो मैंने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया. ठीक है.
और उसमें उसमें मैंने प्राइस I did not mention. I did not mention the price. Only what I did, I have put the revenue stump. Revenue stump मैंने इतना लगाया कि वो 15 lakhs के अंदर ही अपना पैसा लिख सकेगा वहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है, अमाउंट वो लिख सकेगा कितना, टिल 15 lakhs. 15 lakhs से एक्सीड नहीं कर सकेगा, दैट विल नॉट बी वैलिड. व्हाई? ड्यू टू द रिवेन्यू स्टम्प. समझ में आ गया? ठीक है, इज इट क्लियर? तो वैलिडिटी जो होता है ना, जो इसमें जो रिक्वेस्ट, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपका क्या चाहिए, रिवेन्यू स्टैम्प चाहिए अगर आप बनाते हो तो. और यहां पे नो स्टैम्प इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ चेक. नो कंसेप्ट ऑफ स्टॉप पेमेंट. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई आप नहीं बोल सकोगे कि अरे अरे पेमेंट स्टॉप कर दो, देखो ये चोरी का मेरा लेके गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना. लेकिन चेक पेमेंट कैन बी स्टॉप्ड. जैसे मैंने रोहित को एक चेक दिया, तो वो चेक क्या हो गया, खो गया, चेक खो गया. तो रोहित तब मुझे क्या बोलता है, मुझे क्या बोलता है, मुझे क्या बोलता है, इन्फॉर्म करता है ना. रोहित मुझे इन्फॉर्म करता है कि मैम आपने जो चेक दिया था इट हैज बीन लॉस्ट. तो मैं तब बैंक को कॉल करती हूँ, बैंक को कॉल करके बोलती हूँ कि देखो मेरा ऐसा चेक था, मैंने ऐसे रोहित के नाम पे दिया था, लेकिन अब वो चेक खो गया है, इट हैज बीन लॉस्ट. तो अगर किसी बाय चांस किसी को मिला और वो लेके आके विड्रॉ करना चाहा, तो यू प्लीज स्टॉप दैट पेमेंट. ओके, समझ में आया? इज इट क्लियर? Crossing of check. Crossing of check is defined under section 123 to 131A. 123 to 131A. ठीक है? अब a check may be an open check और एक cross check. अच्छा, ये जो क्रॉसिंग का जो चीज है, आपको पता है ना क्रॉसिंग चेक कैसा होता है, पता है ना? ये जैसे चेक हुआ और यहां पे एक क्रॉसिंग दे दिया, ठीक है. अगर मैंने यहां पे क्रॉस दे दिया, दैट मीन्स द अमाउंट विल नॉट बी टेकन फिजिकली इन एनी बैंक. ठीक है, काउंटर में आके आप जो चेक देके पैसा नहीं ले सकोगे. अगर कब ये क्रॉसिंग आ गया, तो क्रॉसिंग आने से मतलब दैट इट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैसा, अकाउंट टू अकाउंट. ओके, अकाउंट टू अकाउंट. ठीक है, समझ में आया? समझ में आया क्या, नहीं आया? जैसे मैंने तुम्हें एक चेक दिया, ठीक है, मैंने तुम्हें एक चेक दिया, तुम बैंक में गए और वहां पे क्रॉस नहीं किया हुआ है, क्रॉस नहीं किया हुआ है, तो तुम गए, तो तुमने बोला, बैंकर को दिखाया चेक, ठीक है, 1 लाख का, तो तुम वो पैसा निकाल के हैंड टू हैंड दे सकेगा, देगा काउंटर में, तुम उस मतलब मनी को विड्रॉ कर सकोगे, ठीक है. लेकिन अगर क्रॉसिंग रहेगा, इफ देयर विल बी क्रॉसिंग, देन यू कैनॉट टेक इट फिजिकली. वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होगा. आप चेक दोगे, लेकिन जैसे ही आप चेक दोगे तो आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर होगा. ओके, यू कैनॉट टेक इट इन योर हैंड. इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आया? मैम, यस. मैम ये चेक मतलब कोई इंसान उसमें मतलब क्रॉस कर सकता है, या फिर वो ऐसा चेक ही इस तरीके से बना होता है जिसमें मतलब क्रॉस मार्क रहता है? नहीं, चेक बना नहीं रहता है, ये आपको ही क्रॉस करना पड़ेगा. यू हैव टू क्रॉस इट. ओके, क्रॉसिंग ऑफ चेक जो होता है, यू हैव टू मेड इट. ठीक है,
जैसे कोई भी जो चेक रहता है वो जस्ट इट विल बी लाइक दिस नॉर्मल चेक, लेकिन जो क्रॉस करना है वो क्रॉस कब करना है, आपको ही करना है. यू हैव टू मेक दिस. ओके, इज इट क्लियर? एंड Yes, ma'am. दिस क्रॉसिंग करने से क्या होता है, आपका जो चेक है वो सेफ में रहता है. ठीक है, क्योंकि अगर बाय चांस किसी ने चोरी कर भी लिया, जैसे आपका चेक खो भी गया, ठीक है, और वो किसी ने ले भी लिया, तो भी क्या होगा, अगर वो जाएगा और बैंकर ने इतना नहीं देखा कि अच्छा ठीक है देना है, तो वो क्या होगा, अपने किसी बैंक में जाके बैंकर के साथ थोड़ा ये करके अपना अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया. बट इससे क्या होगा, आई विल बी एबल टू नो मेरा पैसा कहाँ जा रहा है. अकाउंट में जाने से ही तो आपको पता चल जाएगा ना. अगर फिजिकली आप लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किसके हाथ में जा रहा है, लेकिन जब अकाउंट में जाएगा तभी आपको पता चल जाएगा कि किसके अकाउंट में जा रहा है. ठीक है, अगर ये चोरी है तो आपको पता लग जाएगा. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ इन एन ओपन चेक पेमेंट मे बी ऑब्टेन्ड इन कैश. ओपन चेक जो है ये है ओपन चेक. ओपन चेक में क्या होता है, ओपन चेक क्रॉस नहीं किया हुआ है, so payment will be obtained in cash. ठीक है. In a cross check the amount will be credited to the account of the customer of a bank. Is it clear, Ram? Yes, ma'am. Okay, fine. The act of drawing two diagonal समझ में आया, ऐसा जो, ठीक है, ये this is called diagonal. Okay, two diagonal or transverse parallel lines on the face of a check is called crossing of check. ठीक है, is it clear? दो रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है एक रहने से नहीं होगा, दो रहना पड़ेगा. ठीक है, समझ में आया? Is it clear? There should be two parallel lines. Okay, if you will draw only a single line, then it will not be called as crossing of check. Is it clear? ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके. द एक्ट ऑफ ड्रॉइंग टू डायगोनल, ये समझ में आ गया ना, क्रॉसिंग ऑफ चेक. ठीक है, क्या हुआ, ना हंस क्यों रहे हो, स्माइलिंग फेस. बैंकर का क्या है, नॉट टू पे मनी अक्रॉस द काउंटर इफ इट इज अ क्रॉस चेक. काउंटर में पेमेंट नहीं करना है. ओके, बैंकर हैज टू पे मनी ओनली थ्रू बैंकर. ठीक है, मतलब बैंक टू अकाउंट जाना है. ठीक है, जैसे मेरा चेक एसबीआई का है और तुम गए कहां पे, एचडीएफसी में, तो एचडीएफसी वाला क्या करेगा, वो कांटेक्ट करेगा किसके साथ, एसबीआई के साथ. तो एसबीआई अकाउंट से तुम्हारे एचडीएफसी अकाउंट में ट्रांसफर होगा द अमाउंट. इज इट क्लियर नाउ? दिस इज कॉल्ड द क्रॉसिंग ऑफ चेक. ये जान के रखो. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. Okay. Next. Now, crossing of check are of two kinds. Okay? Crossing of check are of two kinds. First one is general crossing with name or without name. With name होने से क्या होगा, ऑर्डर. विदाउट नेम होने से
bearer. Fine. Special or oh, special or specific. ठीक है, क्रॉसिंग. फाइन, रखो. General crossing. Now, what is called general crossing? General crossing means instruction to the collecting banker not to pay cash over counter but to credit bank account. ठीक है, endorsable. Endorsable आपको समझ में आता है? ठीक है. Now ये यहाँ पे क्या दिया? जनरल क्रॉसिंग में ऐसा सिर्फ क्रॉस करके रख दिया है. ठीक है, और वो आदमी का नाम पे ऐसा जैसे दे दिया. ठीक है, अकाउंट नंबर दे दिया. तो ऐसा इसमें क्या है? जनरल क्रॉसिंग. जो आपका चेक है उसमें यहां पे कुछ भी नहीं लिखा. ठीक है, फाइन. अगर ऐसा है कि अकाउंट पे अगर लिखता है विथ नेम, नाम के साथ, जैसे कनारा बैंक का क्या है? अकाउंट क्रेडिट कहाँ होगा? जैसे अकाउंट पे विथ नेम है, मैंने कहाँ पे दिया? मैंने SBI का एक चेक बनाया. ठीक है, और वो अकाउंट पे, कहाँ पे अकाउंट है? कनारा बैंक में है. विथ नेम, जैसे किस चीज का नाम दे दिया? ईदर आप द पर्सन नेम, पेज नेम और द बैंक्स नेम. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आया? एनी डाउट? एनी डाउट? मैम राम? वहाँ पर पर्सन का नाम भी लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ, मतलब जिसको पे करना है उसका नाम भी लिख. yes. The person's name, the pay's name can be also, you can write the pay's name also or the bank account's name also. Okay, the bank's name also. Fine? ठीक है? यस मैम. अरे वो तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नहीं है, इसमें पे का नाम, पे कौन है? हाँ, नहीं, जिसको पैसा मिलता है, लेकिन अगर वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है ना, जैसे ये जो मैंने बोला अकाउंट पे मतलब क्या? अकाउंट जिसके नाम पे है अकाउंट, दैट अकाउंट पे, वो उसके अकाउंट में जाना है. ठीक है, अकाउंट टू अकाउंट पे करना है. ठीक है, अंडरस्टूड? तो पे कौन बनेगा? जैसे मेरा अकाउंट है, सो माई अमाउंट, माई means the money will be paid to Rohit's account P. Is it clear? Any doubt? यहां पे देखो, SBI अकाउंट P किसके नाम पे है? कृष्णा के नाम पे है. ठीक है, बैंक नेम इज मेंशन स्पेसिफिकली विथ अकाउंट पेई एंड अकाउंट होल्डर नेम. इट कांट बी एंडोर्सेबल, कंप्लीटली सिक्योर्ड. ठीक है, ये एंडोर्सेबल नहीं है, ये ट्रांसफर आप नहीं कर सकोगे. ठीक है, क्योंकि आपका अकाउंट का भी नाम लिखा हुआ है और आपका बैंक अकाउंट का भी नेम लिखा है, और बैंक का जो अकाउंट पेई जो है, दैट नेम हैज ऑल्सो बीन मेंशन्ड. बट ऐसा करना है, आपको क्रॉस करके देना है. इज इट क्लियर? बोलो. नहीं है, हाँ, वो दूसरे अकाउंट में नहीं जा सकेगा. इज इट क्लियर? इट इज सेफ. तो आपको जब भी कोई मतलब चेक, आपको क्या करना है? इफ यू हैव टू मेक अ चेक, ऑलवेज गो फॉर दिस वन, बैंक अकाउंट and the name of the pay. Bank's name, account number and the pay's name. Is it clear? Bank account or the pay's name should be, both the names should be mentioned. Okay, and within the two parallel
lines. ठीक है? Is it clear? Then it will be your safe one. Fine. Without crossing, bank name is mentioned specifically. ऐसा भी होता है, आप क्रॉसिंग नहीं किए हो, आप क्रॉसिंग नहीं किए हो और आपने बैंक का सिर्फ नाम लिख के, पे टू जहाँ है ना वहां पे सिर्फ नाम लिख के आप दे दिया, ऐसा भी होता है कभी कभी. ठीक है? Now, not negotiable. This is very important. Not negotiable crossing. Not negotiable. अच्छा, और एक बात मैं बोलती हूँ, I just forgot to tell you. देखो, just a minute. अच्छा, मैं ये पहले बता देती हूँ. Not negotiable crossing. Not negotiable means section 123 and 124 of the act permit the use of the words not negotiable in the crossing. अगर आप crossing में not negotiable लिख दिए हो, if it has been mentioned not negotiable, then क्या होगा? जैसे आपने जनरल क्रॉसिंग किया, स्पेसिफिक क्रॉसिंग किया, लेकिन आपने क्या लिख दिया? नॉट निगोशिएबल. तो वो क्या होता है ना, जैसे मेरे पास मेरा चेक है, ठीक है, मेरा चेक है, मैंने तुम्हें दिया है, ठीक है, और मैंने क्या किया है? नॉट निगोशिएबल करके दिया है, मैंने नॉट निगोशिएबल करके दिया है. तो बाय मिस्टेक यू हैव टेकन फ्रॉम मी. बाय मिस्टेक क्या हुआ? जैसे मैं रास्ते में जा रही थी, मेरा एक 10 lakhs का चेक है, ठीक है, 10 lakhs का चेक है, और वो किसको मिला? किरण को. किरण को मिला, हाँ, 10 lakhs का चेक, ठीक है. तो तब किरण ने क्या किया, लेकिन वहां पे क्या लिखा है? अकाउंट नेम भी लिखा है और पे का नाम भी लिखा है, ठीक है. एंड इट हैज बीन मेंशन्ड आल्सो दैट नॉट निगोशिएबल. तो ये क्या किया? ये नॉट निगोशिएबल हुआ. नॉट निगोशिएबल मतलब ये अभी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकेगा, क्योंकि ही डिड नॉट गेट द टाइटल. बेटर टाइटल इसको नहीं मिला, क्योंकि मैंने वहां पे नॉट निगोशिएबल करके दिया. अगर मैंने रोहित को दिया, क्या दिया? चेक दिया, तुमको मिला, तुम्हारे नाम पे है चेक, तो मैंने तुमको दे दिया, देके वहां पे क्या था? नॉट निगोशिएबल. यू गॉट द टाइटल बिकॉज आई एम द रियल ओनर, और तुमको मैंने वो दे दिया, तो तुमको मिल गया, ठीक है. लेकिन तुम अगर किसी दूसरा को अब फिर से देना चाहते हो तो तुम नहीं दे सकोगे, बिकॉज इट इज कॉल्ड एज नॉट निगोशिएबल मेंशन. इज इट क्लियर? एनी डाउट? समझ में आया? मतलब आपका टाइटल कोई नॉट निगोशिएबल, मतलब आपका जो टाइटल है वो दूसरे को नहीं मिल सकेगा अगर आप नॉट निगोशिएबल करके रखे हो तो. इज इट क्लियर? अगर मैंने रोहित को दिया, चेक दिया, ठीक है, उसका नाम लिखा हुआ है, तो ऐसा हो सकता है रोहित को किसी दूसरे को अगर देना है तो रोहित वहां पे काट के फिर वो जब तक मैच्योरिटी डेट मतलब 3 months वैलिडिटी है, विद इन 3 months ही कैन negotiate, he can transfer or some other can transfer n number of times. Yes. किसी, हाँ, तब नहीं होगा. नहीं, दैट वन, देखो, तुम अकाउंट पे गए हो ना, यू हैव टू मेंशन दैट वन. तुमको काट के वहां पे तुमको देना पड़ेगा, बट इट विल बी इन्फॉर्म ना. वो तो मुझे तो पता चल जाएगा ना, क्योंकि मैंने क्रॉस करके दिया है ना, आई हैव क्रॉस्ड इट. तो वो क्या होगा, या वो फिजिकली नहीं ले सकेगा, वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होगा. समझ में आया? अकाउंट टू अकाउंट जब ट्रांसफर हो रहा है तो यू विल बी एबल टू नो that whom
in which account it has been transferred the amount. Okay, मुझे भी पता होगा, तुमको भी पता होगा, तुम जिसको दे रहे हो तुमको भी पता होगा. Fine, is it clear? Okay, now according to section 130, a person taking a check crossed generally or specially, bearing in either case the words not negotiable, shall not have and shall not be capable of giving a better title, okay, to the check than that which the person from whom he took it had. Is it clear? समझ में आया? ये सब तुम लोग का MCQ ही आएगा, दूसरा तो कुछ नहीं आने वाला है. So the thing is that you have to understand. If you will understand, then you will be able to write the answer. मैं धूप के बोलूंगी ना. Not negotiable crossing. फिर देखो, the true owner is protected by this type of crossing more perfectly. If it is stolen, a third person finder cannot cash it so easily. ठीक है? The good title cannot be passed to him. He will be compelled to return it to the true owner. समझ में आ गया? If the banker is negligent, अगर banker negligent है, दे दिया जाके बैंक के पास और बैंक ने देखा ही नहीं, and transfer the amount of that check to another account, he will be held responsible. Banker will be held responsible and will be liable to make the compensation to the sufferer. समझ में आया? मैम Yes. मैम एक चीज पूछना था, जैसे कि हमने मतलब वो पिछले पॉइंट में सीखा कि अगर चेक क्रॉस किया है हाँ तो मतलब किसी को जिसको पे करना है हाँ. उसका नाम स्पेसिफिक करके, लेकिन फिर अभी आपने जो इसका मतलब पहले जो अभी पढ़ा था उसमें, लेकिन वहां पर लिखा है कैन नॉट बी ड्रॉन, सो ऐसा क्यों? कि क्या समझ में नहीं आया मुझे, बोलो तो फिर से. मतलब मैम हम लोगों ने जो प्रीवियस पॉइंट में सीखा था कि अगर चेक के ऊपर क्रॉस करके वहां पर जो बैंक अकाउंट प्लस जो पेई है उसका नाम अगर हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं. देखो मैं बोल रही हूँ, हाँ, जो क्रॉस चेक है वो कभी भी आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकोगे, वो फिजिकली आप विड्रॉ नहीं कर सकोगे. यू हैव टू टेक आउट द मनी. कैसे? आपके अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होगा. ओके, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होगा. समझ में आया? ठीक है. Yes. और अगर वहां पे क्या होता है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है, लेकिन मैंने जैसे, अब देखो राम, देखो जस्ट लिसन केयरफुली. जैसे मैंने तुम्हारे फेवर में एक चेक लिखा, ओके, आई हैव रिटन अ चेक इन फेवर ऑफ यू. ठीक है, कितना अमाउंट का? जैसे 10,000 रुपीज, 10,000 का. ठीक है. अब तुमने जाके बैंक में बोला कि मेरा जो अकाउंट है, अकाउंट से तुमने जब चेक दिखाया तो तुम्हारा जैसे अकाउंट HDFC में है या नहीं तो एक्सिस बैंक में है और मेरा अकाउंट SBI में है, तो वो SBI से अकाउंट द अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू योर अकाउंट. ठीक है, टू योर अकाउंट वेयर एवर द अकाउंट योर अकाउंट इज इन एनी बैंक. समझ में आया? ठीक है, वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होगा. और सुनो, अगर ऐसा है कि तुमने जैसे तुमको किसी और को पैसा देना है, सपोज मैंने तुमको 10,000 दिया अमाउंट और तुमको वो किसी दूसरे को देना है, तो टिल इट्स मैच्योरिटी, मतलब उसका मैच्योरिटी कितना है, वैलिडिटी कितना है एक चेक का? 3 months. सो विद इन 3 months आप उस चेक को आपने क्या किया, किसी दूसरे जिसको आपको पैसा देना है उसके अकाउंट पे आपने चेक बना के आपने ट्रांसफर कर दिया. समझ में आया? बिकॉज हियर इट हैज नॉट बीन मेंशन दैट नॉट निगोशिएबल मेंशन नहीं किया हुआ था. ठीक है, जब नॉट निगोशिएबल मेंशन किया होगा, इफ नॉट निगोशिएबल इज मेंशन, देन you cannot transfer, you cannot negotiate the amount, okay, which you have got from some other person. Okay, you cannot go for negotiation to some other person from your side. Okay, और अगर
और अगर ये नॉट निगोशिएबल इज नॉट मेंशन, देन a person can go for negotiating n number of times till its maturity. Is it clear? यस मैम। ठीक है। Now, an instrument is incomplete in one way or other. किसको बोलते हैं? Inchoate instrument. Inchoate instrument का मतलब क्या है? एक incomplete instrument को inchoate instrument बोला जाता है। अब कैसे हुआ देखो, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ना तुम्हें, क्या एग्जाम्पल दिया था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का दिया था ना, कि रोहित को मैंने बोला घर बनाने के लिए, ठीक है, और उसमें मुझे भरना था कितना अमाउंट, वो मेंशन नहीं था, बिकॉज ही वॉज कंफ्यूज दैट इट विल बी वो 15 lakhs का होगा या 12 lakhs का होगा, वो 11 lakhs का होगा, तो कंफ्यूज स्टेट में था, तो मैंने अमाउंट मेंशन नहीं किया। ओके, मैंने सिर्फ रेवेन्यू स्टाम्प देके छोड़ दिया है, ठीक है, समझ में आ गया, और डेट मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो जहां पे मैंने अमाउंट का सर्टेनिटी नहीं दिया है, द अमाउंट इज नॉट सर्टेन, तो वो दैट इंस्ट्रूमेंट विल बी कॉल्ड एज an inchoate instrument, because that instrument is an incomplete instrument. Is it clear? Inchoate का समझ में आया? जो complete नहीं है, समझ में आया? जहां पे आपका कंफ्यूजन है, ठीक है। और वो जो आपका रिवेन्यू स्टाम्प है, रिवेन्यू स्टाम्प आपका 15 lakhs तक है, तो मैंने जैसे रोहित को बोल दिया, देखो तुमने बोला है 12 lakhs तक हो जाएगा, तो 12 lakhs ही भरना, उससे ज्यादा नहीं भरना, तो रोहित क्या करता है, 12 lakhs से बाद में भरता है। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? नाउ डिसऑनर ऑफ द चेक। डिसऑनर तो आपको पता है ना, चेक का विड्रॉ, चेक का विड्रॉ नहीं हो सकता है, क्यों? आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, ठीक है। इट विल बी रिजेक्टेड बाय द बैंकर, ठीक है। एंड क्या होता है, ड्रॉयर को कितने दिन का, 15 days का नोटिस मिलता है कि विद इन 15 days आपका वो अमाउंट आ जाना चाहिए, कहां पे? आपका अकाउंट पे। अगर नहीं होता है, देन a person will sue for that. Who will sue? The banker. समझ में आया? Is it clear? अब सुनो, अब मैं एक चीज तुम लोग को बोलना चाहती हूँ, क्या, एक रुको। The thing is that just a minute. Okay. Now, what is called inland instrument? What is called inland instrument? Inland instrument. जैसे मैं इंडिया में हूं, ठीक है, सपोज A is a person, A is a person, A कौन है? रुको, ये है किरण, किरण को ही देती हूं मैं। अब देखो, किरण is a person who is in India, ठीक है। Now, ठीक है, now he made a check, ठीक है, वो एक चेक बनाया, नहीं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, ठीक है, और किसको देना है उसको?
किसको देना है? राज को, ठीक है। अब राज कहाँ रहता है? यूएसए में रहता है, ठीक है। राज रहता है यूएसए में, लेकिन राज इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। राज इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सो इट इज कॉल्ड एज, अब इसमें पेमेंट तो होगा ना, तो ये क्या बोला जाएगा? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और सपोज राज, जैसे किरण है इंडिया में और राज है कहाँ का? राज है, ठीक है, राज है यूएसए का, ठीक है। राज है यूएसए का सिटीजन, लेकिन वो रह रहा है कहाँ? इंडिया में। He is not a citizen of India, but he is staying in India. So it will be also called as inland instrument. Is it clear? समझ में आ गया ना? Okay, now 3 are there. Genuine, accommodation and fictitious bill. Okay. Now what is this? When a bill is drawn or endorsed for consideration is a genuine bill. ठीक है? Consideration क्या हुआ? Consideration, हाँ? Page 128. Consideration क्या हुआ? Consideration का मतलब एक हाथ से, हाँ एक हाथ से लो। समझ में आया? अभी मैं जैसे कुछ अमाउंट दे रही हूं और तुम उसके बदले मुझे कुछ सर्विस दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड द जेन्युइन बिल, ठीक है। समझ में आया? When it is drawn, accepted, अच्छा, when it is drawn, accepted or endorsed without consideration, it is called accommodation bill. Accommodation bill मतलब, जैसे accommodation मतलब एक्स्ट्रा फैसिलिटी, आपको फैसिलिटी मिल रहा है, ठीक है। समझ में आया? आपको मैं पैसा दे रही हूं, जैसे मैं देखो कैसे एक एग्जांपल दे रही हूं, रुको। जैसे किरण is a very famous person, ठीक है। समझ में आया? अब किरण को अंजलि बोलता है, किरण को अंजलि बोलता है क्या? आई नीड an urgent amount of rupees 20 lakhs, ठीक है, 20 lakhs। समझ में आया? ठीक है। अब किरण क्या बोलता है अंजलि को? किरण बोलता है, किरण बहुत फेमस है, वो बहुत आदमी को हेल्प करता है, ही इज अ फेमस पर्सन, ठीक है। तो अब सुनो, अब अंजलि बोलता है मुझे पैसा चाहिए किरण से, तो किरण क्या बोलता है कि मेरे पास तो भाई अभी पैसा नहीं है। ठीक है,
तुम किसी दूसरे से भी ले लो, मेरा नाम बोलो, तुम्हें दे देगा. ठीक है. सो अंजलि वेंट टू राज. ठीक है. और राज को बोलता है मुझे किरण ने भेजा है कि 20 lakhs देने के लिए, तो तुम मुझे दे दो. तो राज बोलता है ठीक है, अगर किरण ने तुम्हें भेजा है तो मैं तो ना नहीं कर सकता हूं. ठीक है, मैं मना कर ही नहीं सकता हूं. तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? राज ने क्या किया? अंजलि को पैसा दे दिया, 20 lakhs. So this is called an accommodation bill. Facility, extra. हाँ, ठीक है. और फिक्शियस मतलब नॉट रियल और ट्रू, इमेजिनरी. ठीक है. अब तुम लोग को मैं एक चीज पढ़ाती हूँ, रुको. आज के लिए काफी नहीं, ये खत्म कर दूंगी मैं. ये खत्म करके ही जाना है मुझे. Now, who is called the holder? And holder in due course. Holder is the legal owner of the इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, समझ में आया? लीगल ओनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. फाइन. ठीक है. एंड जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो कौन है? जो जिसका, हाँ नहीं, जिसके पास जो, मतलब जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, जैसे राज है. ठीक है. राज का एक चेक, 10,000 अमाउंट का चेक किसको दिया? रोहित को दिया. ठीक है, रोहित को दिया. तो राज क्या है? लीगल ओनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. और जो रोहित है, रोहित है होल्डर इन ड्यू कोर्स, जो कोई भी कंसिडरेशन के बिना, कंसिडरेशन का वो क्या है? लीगल ओनर बन गया. ठीक है, उसको दिया तो उसको पैसा तब मिल गया, वो अभी लीगल ओनर है. तो ये होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स का. समझ में आया? ठीक है. इज इट क्लियर? एनी डाउट? लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स का कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता है. ठीक है. कंसिडरेशन अगर होगा तो वो नहीं बनेगा. समझ में आया? और ये जो होल्डर है, जैसे होल्डर का, जैसे मैं मान लो होल्डर का जो, ये जो राज है, राज का कोई चेक जो है वो चोरी कर लिया. किसने चोरी किया? आकाश ने चोरी किया. ठीक है, आकाश ने चोरी कर लिया. किसका चेक? राज का चेक. अब आकाश ने चोरी किया. चोरी करके आकाश ने क्या किया? इस चेक को फिर एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया. किसको? किरण को. अभी किरण को तो पता नहीं है, वो तो गुड फेथ में लिया है, उसको तो पता नहीं है चोरी का चीज है. सो दैट टाइम ही विल बी द होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड ही कैन फाइल अ केस अगेंस्ट एवरीवन, अगर उसको पैसा नहीं मिला तो. ठीक है, समझ में आया? इज इट क्लियर? ठीक है. So I have completed this chapter, negotiable instruments. If you have any doubt, please ask me. Without any hesitation, you can call me also. My online students, everything is clear? Yes, ma'am. Okay. So next time, next day I'm going to discuss about the communication, business communication.
So thank you one and all. I'm winding up the class here. Thank you.